हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ चिलेशन के बारे में। नंबर ऑफ लिगेंड्स जो होते हैं जिनमें मोर देन 2 डोनर एटम्स होते हैं, दिस आर कॉल्ड चिलेट्स। चिलेट्स का जो वर्ड का डेफिनेशन होता है वो चेले शब्द ग्रीक वर्ड होता है चेले, CHELE। चेले से का मतलब होता है क्ला, CLAW, क्ला मतलब पंजा। तो उससे हम रिलेट करते हैं कि जैसे नंबर ऑफ डेंटिशन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, ज़्यादा डोनर एटम हो जाते हैं जो कि मेटल आयन को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तो इस सिस्टम को चिलेशन बोलते हैं। ओके, नाउ डिफाइन इट। चिलेशन, चिलेशन, द number of donor atoms are more than 2 is called chelation. The word chile come from Greek word. The word chelation comes from Greek word chile. It means claw, पंजा। जब एक से अधिक डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम को अटैच करते हैं, उससे कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड चिलेटिंग complexes. The chilating complex are those complex in which ligands has more than one donor atom. These donors which are coordinately bonded with metal ions. It may be bidentate, tridentate, tetradentate, hexadentate, penta, all these type of up to hexadentate. अब मोनो तो आप जानती हैं मोनोडेंटेट क्या होता है, जिसमें एक डोनर एटम होगा मोनोडेंटेट होगा, इसमें 2 डोनर एटम होंगे डाइडेंटेट होगा, या बाइडेंटेट। तो लाइक NiEN plus this is complex. EN is ethylene diamine, bidentate ligand. Both 2 donor atoms are attached with the metal. It is metal. Or this one. This is तो EN is ethylene diamine. Bidentate ligands. Bidentate means 2 donor atoms are present. 2 donor atoms are present and they provide lone pair of electron to center metal. This is metal. Okay. So now
discuss it briefly. The structure of this one is can be written as this type. This is metal. So two donor atoms are here. So didentate chelating ligand. These are the chelating ligands. These are the chelating ligands. Chelating ligands. Chelates. जैसे हम डिस्कस करते हैं बाइडेंटेट वैसे ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट को पेंटाडेंटेट बोलते हैं. अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद आप देखिए. Now tridentate ligand or tridentate ligand. When three donor atoms are present in the structure of this is three donor atom. This is three donor atom. Now the structure of diene is structure. Structure जिसका क्या होता है? Structure. Diethylene triamine. इसका नाम है डाइथिलीन ट्राइमाइन. डाइथिलीन ट्राइमाइन. स्ट्रक्चर इज NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2. Now this is donor atom, this is donor atom, and this is donor atom. All these provide lone pair of electron to ligand, and one atom is provided by the one lone pair of electron is provided by the C atom. Now it can be firstly structures like that. This is nickel, NH, CS2, CS2, NH2, CS2, CS2, NH2, and this is Cl. Plus three donor atoms are 1, 2, 2 and 3 donor atoms are present. Okay. Then if the number of donor atoms are present but they are not providing a lone pair of electron to central metal atom and forming desired number of covalent bond, then this type of ligands are called फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड, जिसमें डोनर एटम तो ज़्यादा होते हैं पर वो कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड नहीं होते हैं मेटल से. इस तरह के लिगेंड फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं. और जब ये अपनी इस तरह की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, उसका जो स्थायित्व होता है वो कम हो जाता है. क्लियर? नाउ सेकेंड वन इज टेट्राडेंटेट लिगेंड्स. Here, 4 donor atoms are present. Tetradentate ligand. Tetradentate ligands. What are tetradentate? This is tetradentate. Tetradentate. Triethylene tetramine. एक ethylene. NH, दूसरा एथिलीन NH, तीसरा एथिलीन NH2, एक डोनर एटम, दो डोनर एटम, तीन डोनर एटम, चार डोनर एटम, 4 डोनर एटम्स.
4 donor atoms. M is nickel. Example is this one. Now the first structure, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे डोनेट करते हैं, आप वो देख लीजिए. Nickel is present in the middle of the all these. These are NH, CS2, 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 NH2, NH2, CS2, CS2. Tetradentate ligand. Now this structure is 4 donor atoms are present. 1, 2, 3, 4. 4 donor atoms are present. 4 donor atoms are present. किसमें है? लिगेंड्स में. लिगेंड्स. इन एब्रिविएशन, इसका जो एब्रिविएशन होता है टेट्राडेंटेट लिगेंड, एथिलीन डाइमीन या ट्राइएथिलीन टेट्राएमाइन, एमाइन. 3 एथिलीन है, 4 एमाइन. तो इसको क्या लिखेंगे? ट्राई ई एब्रिविएशन है इसका. ये हमने यहां पर लिखा हुआ है. क्लियर? तो नाउ विल डिस्कस फर्दर पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट. 2 आपके रह गए हैं, वो मैं डिस्कस कर दूंगा. इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो नए लेक्चर बनाएंगे, अच्छे लेक्चर बनाएंगे और अच्छा करेंगे आपके लिए. तो नाउ दिस इज ब्रीफ ऑफ दी पेंटाडेंटेट. नाउ फर्स्टली आई हैव डिस्कस प्रीवियसली डाइडेंटेट मीन्स बाइडेंटेट. एथिलीन डाइमीन को डिस्कस किया था. तो ऑल दीज आर इन द फ्रंट ऑफ यू. यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको देखिए, जानिए, पहचानिए और इसके साथ आप चलना सीखिए, मतलब इसको पढ़ना सीखिए. ओके, स्टूडेंट्स, मैं डिस्कस करने वाला हूं पेंटाडेंटेट लिगेंड और हेक्साडेंटेट लिगेंड. पेंटाडेंटेट dentate ligands. These are the ligands. These are the ligands having 5 donor atoms. 5 donor atoms. And they coordinately bonded with central eye. Example कैसा है? EDTA, but structure is change. नाम तो EDTA बड़ा कॉमन है, पर ये पेंटाडेंटेट तरह कब काम करेगा, इसका दूसरा नाम भी लिखते हैं. दिस इज एथाइलीन डाइएमाइन ट्राइएसिटेट एसिटेट. दिस इज ट्राइएसिटेट. स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? This is NH, CS2, CS2, N, now this is erased, diacetate, CS2C double bond O minus, CS2C double bond O minus.
CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। तो एक एसिटिक एसिड ये 2 3 4 5 these have lone pair of electron. तो donor atom is nitrogen, this is and finally 5 this is metal ion. Pentadentate ligand 5 donor atoms are 5 donor atoms are present. क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कंपाउंड बना देते हैं। CO, this is EDTA along with 1 ammonia. Okay, so now all these donor atoms are present. Now this is pentadentate ligand, pentadentate ligand. 5 donor atoms are present and each donor atom, प्रत्येक donor atom एक lone pair देता है। तो now each donor atom provide a lone pair of electron to central metal ion. Now the coordination number of this one is 6. यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 5 डोनर एटम इससे हो जाएंगे, 1 डोनर एटम इससे हो जाएगा। क्लियर? तो जब इसको हम ओपन करके इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? इस टाइप से CO is present in the middle of the and 1 2 3 4 and 5. All these are provided by one ligand and someone is provided by NS3. Structure is octahedral. Now find it. O CH2 यहां रख देते हैं एंड फिर CH2 NH, this is NH and CH2 this is N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये प्रोवाइड कर रहा है ऐसे। फिर उसके बाद C CH2 C O, ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गए 5 डोनर एटम्स से। दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। ऐसे ही अब इसी में एक और डिस्कशन किया जाता है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। कैसे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। लिगेंड्स में डोनर एटम तो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं पर कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड नहीं होते, तो उस टाइप के जो भी लिगेंड्स होते हैं वो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। संभवतः ये मोर देन 2 डोनर एटम जब भी होंगे
तो दे आर वर्किंग एज ए फ्लेक्सिबल, कैन पॉसिबल टू वर्क एज ए फ्लेक्सिबल इंटेट लिगेंड. कैसे? सपोज दीज 5 डोनर एटम आर नॉट प्रोवाइडेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये पांचों जो हैं वो लोन पेयर पांचों कोऑर्डिनेट करके पांचों लोन पेयर ना दें. ठीक, तो क्या होता है, ये सपोज इसने नहीं दिया और इसने नहीं दिया, तब ये ट्राइडेंटेट की तरह कार्य करेगा, वर्किंग एज ट्राइडेंटेट. चूंकि ऑक्सीडेशन के लिए दूसरे हम लगा देते हैं लिगेंड्स, 2 हटाए 2 लगा दिया हमने NH3. ठीक, इस मेटल केस में तब क्या हो गया, तो ये जो है ये फ्लेक्सीडेंटेट की तरह काम करेगा. फ्लेक्सीडेंटेट, they have power to donate lone pair of electron by each donor atom, but they are not providing a lone pair of electron and not forming coordinately bonded with all these metal. This is center metal atom. इसके साथ ये पांचों डोनर एटम कैपेबल तो है देने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर देते नहीं. तो जो स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की वो लूज होती है. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, ड्यू टू presence of flexi-dentate ligand, flexi-dentate ligands, complex is unstable or less stable. Complex is less stable. Clear? तो फ्लेक्सी-डेंटेट बीच में डिस्कस हो गया. अब फाइनली मैं डिस्कस कर रहा हूं हेक्साडेंटेट लिगेंड. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां जो लिखा उसको देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, फिर मैं इसको रेस करके दूसरा बना देता हूं. Now EDT, hexadentate ligands, EDTA, ethylene diamine, tetra acetic acid, एसिटेट कर दीजिए, आयंस. कैसे स्ट्रक्चर, O minus CS2, C double bond O minus, CS2 C double bond O minus, CS2 C double bond O minus. All these are acetate ions. These are the amines. So now 6 donor atoms are present to donate a lone pair of electron to central ion. That's why it is called hexadentate ligand. Hexa means 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. हेक्साडेंटेट लिगेंड. तब इसका स्ट्रक्चर जब किसी के साथ ही कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो चारों तरफ से उसको घेर लेता है. दिस इज क्ला 1, 2, 3, 4, 5. Along with this 6. This is 6 or this is 6. तो जब 6 हो जाते हैं, this is also finger, तो इसको जो स्टेबिलिटी मिलती है वो ज्यादा मिलती है. और अगर यही वर्क फ्लेक्सीडेंटेट की तरह वर्क करने लगे, इट इज आल्सो पॉसिबल टू वर्क एज ए फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड. पॉसिबल भी है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स बनाने के लिए, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है. अब जैसे इसमें हम लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स EDT, this is 3. Okay, all these are
एक्साइडेंटेड लिगेंड्स 1 2 3 4 5। अब इसमें अगर हम इसको ही फ्लेक्सीडेंटेड की तरह काउंट करें तो ये दो हैं एसिडेट आयन, सपोज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अलोन प्रोडक्ट आयन, तो ये इतना प्रोवाइड करेंगे 6 4 कर रहे हैं, 6 की कैपेबिलिटी है 4 प्रोवाइड कर रहे हैं, या 6 की कैपेबिलिटी है 3 प्रोवाइड कर रहे हैं, तब वो कंडीशन फ्लेक्सीडेंटेशन कहलाती है, फ्लेक्सीडेंटेड कंडीशन कहलाती है। क्लियर? अब इसी में एक कंडीशन और आती है लिगेंड्स के टाइप। कैसे टाइप होते हैं? एक होता है होमोलिप्टिक टाइप ऑफ लिगेंड्स, क्या हो गया? एक टाइप बताया था हमने, दिस इज होमोलिप्टिक, लेप्टिक, दूसरा है हेट्रोलिप्टिक। होमोलिप्टिक किसका होता है? होमोलिप्टिक if all the ligands are same type, this is called homoleptic. For example, ligands are same type ligands. क्लियर? जब एक ही तरह के लिगेंड यूज होते हैं तो दिस इज कॉल्ड होमोलिप्टिक. नाउ इफ हेट्रोलिप्टिक क्या होता है? लेप्टिक. इफ मोर देन 2 टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, या मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट. इफ more than 1 type of ligands are present, it is called heterolytic. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? COCl2 NH3 होल 4, लास्ट में क्या बचेगा? +1. क्लियर? तो ये आपका ब्रीफ हो गया होमोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स. अब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे काउंट करते हैं, चार्जेस कैसे काउंट करते हैं, और लास्टली नॉमेनक्लेचर, उसके बाद VBT, CFT, CFSE, ऑल दीज विल डिस्कस. ओके, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में बांटते रहिए. अभी तो फ्री मिल रहा है, आराम से सबको बांटो, पर समझ में आए उसके बाद बांटो. खुद भी समझो पहले, उसके बाद दूसरों को बताओ, क्योंकि जब खुद ही समझ में नहीं आया तो तुम जरा हटा छोड़े यार. ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स बने, ठीक है, पर इसको पढ़ो बेटा, टाइम देना पड़ता है. अगर आप टाइम दोगे तो आपको समझ में आएगा. अगर आप ऐसे ही सर्फिंग करते रहोगे यूट्यूब पे जाके, ये वाला टीचर कैसा, ये वाला टीचर कैसा, इससे देखते कुछ समझ नहीं आएगा. पूरे कॉन्सेप्ट सहित हर चीज़ आपको रिटर्न मैटर मिल रही है, आप देखिए इसको, और लाइक तो दनादन दीजिए. ओके, पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा. फिर इसकी प्रॉब्लम जो आएंगी वो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा. ओके.